Very good morning, dear students. I'm your Dharmendra sir from English Learning Portal. In today's video, I'm going to dictate a chapter which is taken from your Beehive book. This one is a textbook in English for class 9th student. Name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. एक सच्चा खूबसूरत दिमाग. So this one is a short biography about Albert Einstein. As we know that he was a scientist, he discovered several laws. But in this story, we are going to study the another aspect of his life in which he favored humanistic approach, non-violence approach, and so on. Okay, so let's start the chapter. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. Ulm is a name of place in Germany. Destined means fate, a preset of belief. In Hindi, this one is known as भाग्य. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के उल्म में हुआ था. एंड एट द वेरी बिगनिंग मीन्स एट द चाइल्ड एज, when he was a child, there was no such kinds of symptom, no such kinds of any indication that in future he will be a great scientist. ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि वह फ्यूचर में महानता उनके भाग्य में थी. ऑन द कंट्री, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Freak, a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave, look, or think like others. Means a word which means that a person who is not acting or reacting like a normal people, like other people. एक ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल पीपल की तरह, जैसा कि दूसरे लोग सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, देखते हैं, वैसा ना करे. तो इनकी मां का सोचना था जो अल्बर्ट क्या है, एक फ्रीक थे. ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका हेड जो है वह बहुत बड़ा है. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब आइंस्टाइन 2.5 years के हो गए थे, आइंस्टाइन तब भी बोल नहीं पा रहे थे. और जब फाइनली इन्होंने बोलना सीखा, वह हर बातों को 2 बार बोलते थे. अटर्ड का अर्थ क्या होता है? स्पीक. तो वह हर चीज़ों को 2 बार रिपीट करते थे. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. Means till now, Einstein did not have any kinds of idea that what to do with other children. Einstein के पास ऐसी जानकारी नहीं थी. मीन्स उनको ये नहीं पता होता था कि वह दूसरे बच्चे के साथ क्या करें. और इसीलिए उनके जो प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ खेलते थे, वह उन्हें किस नाम से बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाया जाता था. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Means here Einstein invested his maximum time in himself. वह खुद में ही मैक्सिमम टाइम खेलते रहते थे और वह सबसे ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज को पसंद करते थे. मैकेनिकल टॉयज किसे कहते हैं? जिसमें मशीन लगी होती है. Looking at his newborn sister Maja, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?" और जब वह अपनी छोटी बहन माजा को देखते हैं तो वह क्या कहते हैं? अच्छा, लेकिन इसका व्हील्स कहाँ है? Here wheels refers to legs of her sister. अब आप समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में मैक्सिमम टाइम मैकेनिकल थिंग्स आते रहते हैं.
इसलिए यहाँ पर इन्होंने उस छोटी सी बच्ची को के बारे में, अपनी छोटी सिस्टर के बारे में, उनके पैरों को व्हील्स के साथ कंपेयर किया है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. So what's happened? Now a headmaster who raised a negative statement about Einstein and complained from his father that whatsoever Einstein will choose as a profession, as a career, that doesn't matter because he will never get a success in those field. एक हेडमास्टर थे जो उनके पिताजी को कहते हैं कि आइंस्टाइन एज अ प्रोफेशन में किसी भी चीज को अगर वो चूज कर लेता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह उन चीजों में सक्सेस नहीं करेगा। तो हेडमास्टर का यहां पर निगेटिव स्टेटमेंट था अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन। और ऐसा क्यों था? क्योंकि यह अपने दोस्तों के साथ खेला नहीं करते थे, वह उनके साथ जैसा नॉर्मल पीपल करते हैं, जो दूसरे लोग करते हैं, वैसा वो रिएक्ट नहीं करते थे। समथिंग वॉज डिफरेंट इन अल्बर्ट आइंस्टाइन। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Amateur का अर्थ क्या होता है? Doing something for personal enjoyment rather than as a profession. किसी भी चीज को अपने पर्सनल enjoyment के लिए करना, ना कि उसको एज अ प्रोफेशन पिक करना। और ये कौन सा चीज होता है? नॉर्मली आपके हॉबी जो होते हैं वो आपका प्रोफेशन नहीं होता है, वो क्या होता है? आप अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए उन चीजों को पसंद करते हैं। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जब 6 इयर्स के थे तब से उन्होंने क्या किया? वायलिन सीखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसकी मां, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मां ऐसा चाहती थी। और बाद में यह क्या हो गए? एक एमेच्योर वायलिनिस्ट भी हो गए। और ऐसा स्किल इन्होंने अपने लाइफ टाइम के लिए मेंटेन किया। मीन्स ऐसा नहीं कि इन्होंने वायलिन सीखा और उसको भूल गए। लाइफ टाइम मीन्स पूरी जिंदगी यह वायलिन बजाते रहे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल. He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good mark in almost every subject. People means student. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक खराब स्टूडेंट नहीं थे। Now a question which arised in our mind that why but is used in this sentence, because there were several kinds of negative statement which has been raised against Albert Einstein. First one is that he was not such kinds of child who lived in between their playmates because he did not have any kinds of idea that how to react with other ones. Second one, that his headmaster approached a negative statement against him. And the third one, that he learned the violin at the age of 6. They all are counted as a negative statement. That's why this sentence is used that Albert Einstein was not a bad student. और जब वह 15 महीने के हुए थे तभी उनकी फैमिली मुनिक शिफ्ट हो गई थी और वहां पर इन्होंने हाई स्कूल किया और ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में इन्होंने अच्छा मार्क गेन किया। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. और आइंस्टाइन स्कूल के जो एक्सट्रीम डिसिप्लिन होते हैं, रेजिमेंटेशन मीन्स होता है एक्सट्रीम डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना। तो स्कूल के इस एक्सट्रीम डिसिप्लिन को वो नहीं चाहते थे, वो उससे हेट करते थे। और इसके कारण क्या होता था? उनके टीचर के साथ क्लैश्ड होता था, मीन्स टकराव होना। क्लैश का अर्थ क्या होता है? टकराव होना। और जब वह 15 साल के एज में थे, आइंस्टाइन इस चीज को बहुत ज्यादा सफोकेट कर रहे थे, उस एक्सट्रीम डिसिप्लिन को,
स्टिफल्ड का अर्थ क्या होता है? सफोकेटेड, कि उन्होंने क्या किया? स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। यहां लास्ट ईयर अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट थे वो मिलान शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने अपने बेटे को मीन्स आइंस्टाइन को रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। लिबरल का अर्थ क्या होता है? विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, किसी दूसरे की समझ और उनके ओपिनियन का इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ विद देयर रिलेटिव्स, विद देयर पेरेंट्स। तो आइंस्टाइन की जो पढ़ने की इच्छा थी, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जो पढ़ने की इच्छा थी, वो विश एक्सेप्टेड हो गई, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है वह म्यूनिक से ज्यादा लिबरल था। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Walrus is a design of mustache, मूछ का एक डिजाइन। तो यहां कहा गया आइंस्टाइन was much more excellent, highly gifted in mathematics. और उनका पसंद फिजिक्स में भी था। और स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वह आगे की जो स्टडी है वह यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक में करेंगे। बाय द वे, ज्यूरिक इज ऑल्सो ए प्लेस इन स्विट्जरलैंड। हियर डैशिंग यंग मैन इज रेफर टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो डैशिंग यंग मैन को ऐसा नहीं था कि सिर्फ साइंस ही बहुत ज्यादा अपील कर रहा था। It means that something other was also appealing this dashing young man. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature. So here, Albert Einstein had a special interest in his fellow student, in his colleague named Mileva Marik. आइंस्टाइन का एक और इंटरेस्ट था, स्पेशल इंटरेस्ट किस में था? तो मिलेवा मैरिक में था। और उनका मानना था कि वह भी क्या है? एक क्लेवर क्रिएचर है, मीन्स शी हैड अ क्लेवर माइंड। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। सर्व हियर रिप्रेजेंट्स फॉर सर्बियन। सो मिलेवा मैरिक कहां से बिलोंग कर रही थी? सर्बिया से बिलोंग कर रही थी। तो वह भी स्विट्जरलैंड आई हुई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक जो है वह कुछ कॉलेजों में, कुछ यूनिवर्सिटी, यूरोप के कुछ यूनिवर्सिटी में से ऐसा एक यूनिवर्सिटी था जो कि वुमेन को डिग्री देता था। आइंस्टाइन सॉ इन हर एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। एली मीन्स फ्रेंड। तो यहां पर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वह उनमें अपना एक दोस्त देख रहे थे, क्योंकि वह भी क्या थी? फिलिस्टीन्स थी के अगेंस्ट में थी। फिलिस्टीन्स किसे कहा जाता है? सच काइंड्स ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। ऐसे लोग जो आर्ट में, म्यूजिक को या लिटरेचर को पसंद नहीं करते हैं। तो मिलेवा मैरिक भी क्या थी? ऐसे लोगों के खिलाफ में थी। मीन्स शी हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Odds का अर्थ क्या होता है? अपोज। तो इनकी फैमिली और यूनिवर्सिटी के जो कुछ लोग थे वह क्या थे? उनको भी म्यूजिक, लिटरेचर ये सब पसंद नहीं था, और उनके साथ हमेशा अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या होता था? अपोज होता था। मीन्स वे दोनों हमेशा एक दूसरे का विरोध करते थे। द कपल फेल इन लव मीन्स यहां पे ये दोनों क्या हो गए? अब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। और उन दोनों के बीच में अब लेटर का भी आदान प्रदान स्टार्ट हो गया, और उसमें जो शब्द यूज किए जाते थे, प्यार वाले जो शब्द यूज किए जाते थे, वह भी क्या थे? साइंस से बिलोंग करते थे। एक एग्जाम्पल दिया गया है, रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। अब आप अनुमान लगा सकते हैं
कि वो लव लेटर का शब्द कैसा था कि हम लोग खुश होंगे, कितने खुश होंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे जब हम दोनों रिलेटिविटी पर साथ में वर्क करेंगे और उसमें क्या होगा, जीत हासिल होगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 की बात हो रही है जब ये क्या थे, 21 ईयर्स की एज में थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड कंप्लीटेड देयर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और वह क्या थे, बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और अब वो क्या काम करना स्टार्ट कर दिए, वह अब एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिए, जहां पे वे प्राइवेट लेसन्स वगैरह देते थे, मीन्स पढ़ाते थे। और फाइनली एट द एंड 1902 में 1902 में इन्होंने एक जॉब सिक्योर किया। वो कौन सा जॉब था, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न के पेटेंट ऑफिस में इनको टेक्निकल एक्सपर्ट की एक पोस्ट मिल गई थी। When he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब वह क्या कर रहे थे, दूसरे लोगों के इन्वेंशन को एसेस कर रहे थे, देख रहे थे, तो उस समय में वह अपना भी आइडिया डेवलप कर रहे थे, जो कि वह एक रहस्य के रूप में था, मीन्स वह किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. और वह कहते हैं, एक मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उनका जो डेस्क ड्रॉअर था जिसमें वो रखते थे अपने सीक्रेट आइडियाज को, उसे क्या कहा इन्होंने, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. तो एक स्पेशल फेमस पेपर में 1905 में आइंस्टीन का एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलीज हुआ था और उनके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस दोनों पूर्ण नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. और यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक जो हैं वह भी सही समय, एक जैसा समय नहीं दिखाएगा। अगर दोनों को एक जर्नी के बाद आपस में फिर से लाया जाए तो दोनों की टाइम क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनमें से एक हो सकता है बहुत ही फास्ट रिलेटिव से क्रॉस कर रहा हो दूसरे से। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी को फॉलो करते हुए इन्होंने दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला दिया जो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, मास और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया गया। एंड दैट फॉर्मूला वाज E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum, about 3 lakh km per second. So यहां पे E किस चीज को डिनोट कर रहा है, एनर्जी को डिनोट कर रहा है, m किस चीज को डिनोट कर रहा है, मास को डिनोट कर रहा है, और c स्पीड ऑफ द लाइट जो कि वैक्यूम में बताई जा रही है उसको यह डिनोट कर रहा है। और इसका अप्रॉक्स कितना बताया जा रहा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। Even one of the famous quote which has been given by Albert Einstein that when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. और इन्होंने रिलेटिविटी को किस हिसाब से बताया था कि जब आप किसी अच्छी सी लड़की के पास आप 2 घंटे तक बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है मानो यह सिर्फ 2 मिनट के लिए ही आप बैठे हुए हों। लेकिन अगर आप किसी हॉट स्टोव मीन्स बर्निंग स्टोव पर अगर आप 2 मिनट भी बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है मानो यह कि हम 2 घंटे से उस आग पर बैठे हुए हों। इसी को रिलेटिविटी कहा जाता है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail, शुरू से ही खराब हो जाना। और जहां पर आइंस्टीन फिजिक्स के सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, वहीं पर उनकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ क्या थी, वो फेल होते जा रही थी।
Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. और अल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ क्या थी, इस चीज के अगेंस्ट में थी। सी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। और उनकी माँ का सोचना था कि मिलेवा क्या है, वह 3 साल उनके बेटे से बड़ी है और वह बहुत बड़ी हो गई है। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंसी। बॉदर्ड का अर्थ क्या होता है, चिंता होना। और वह मिलेवा के इंटेलिजेंस पे भी चिंतित थी और वह कह रही थी, सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी माँ कहती है कि वह तुम्हारी तरह ही एक किताब है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। और आइंस्टीन ने क्या कर दिया, अपना वेडिंग मीन्स शादी जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. और फाइनली दोनों ने जनवरी 1903 को शादी कर लिया और उनके 2 बेटे हुए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो शादी क्या हो गई, फॉल्टर्ड हो गई, मीन्स कमजोर पड़ गई। फॉल्टर का अर्थ क्या होता है, बिकेम वीक, कमजोर पड़ जाना। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मतलब क्या था, मिलेवा क्या थी, उनका जो अपना एम्बिशन था, इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, वह खो रहा था और अब वह क्या हो गई थी, एक अनहैप्पी, दुखी हाउसवाइफ हो गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। और लगातार ये जो झगड़े हो रहे थे आपस में कपल के बीच में, तब उन दोनों कपल ने क्या किया, एट लास्ट 1919 में डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी कजन के साथ एल्सा से शादी कर लिया। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। इन 1915 he had published a general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। और आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर था, मीन्स रिसेंटली ऑन दैट टाइम ही मैरिड विद एल्सा, अपनी कजन एल्सा से उन्होंने शादी किया था। ठीक उसी समय, कोइंसिडेड मीन्स ठीक उसी समय वर्ल्ड फेम भी उनका राइज होना स्टार्ट हो गया, मीन्स ठीक उसी समय में उनकी ख्याति, संसार में उनकी ख्याति भी राइज होना स्टार्ट हो गई थी। इन 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी पब्लिश किया था, जो कि ग्रेविटी में एक नया इंटरप्रिटेशन था। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। इक्लिप्स का क्या होता है, ग्रहण। और 1919 में जो सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, वह इस चीज को प्रूफ कर दिया गया कि यह क्या था, सही था। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field। और आइंस्टीन ने बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट किया था बहुत पहले कि तारों की जो लाइट है वह सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट होगी और कितने एक्सटेंट तक होगी ये उन्होंने एडवांस में ही बता दिया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और न्यूज़पेपर ने इस चीज को प्रोक्लेम किया था, बताया था कि यह क्या है, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। और 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। ही वॉज सर्व्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। और उनको क्या हुआ, पूरी दुनिया की तरफ से उनको ऑनर मिलना स्टार्ट हो गया, इनविटेशन मिलना स्टार्ट हो गया और प्रेस की तरफ से उनका क्या करना स्टार्ट हो गया, प्रेज करना स्टार्ट हो गया, उनकी प्रशंसा होनी स्टार्ट हो गई थी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। Immigrated का अर्थ क्या होता है, live one's own country in order to settle permanently in another। मीन्स अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाना। तो अब जैसे ही जर्मनी में नाजीज का शासन आया 1933 में, आइंस्टाइन क्या कर दिए, यूएस शिफ्ट हो गए, मीन्स उस जगह को, जर्मनी को उन्होंने छोड़ दिया। 5 years later
द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट्स इन एन अप्रोड। अप्रोड का अर्थ क्या होता है? वेरी अपसेट, बहुत ज्यादा अपसेट होना, वेरी अपसेट। 5 साल के बाद वहां पे बर्लिन में एक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ, डिस्कवर किया गया, मीन्स बम बनाने का वहां पर स्टार्ट हुआ। और इसके कारण क्या हुए? अमेरिकन जितने भी फिजिस्ट थे वह बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और उनमें से बहुत सारे क्या हुए? उस जगह को छोड़ दिए। आइंस्टाइन ने भी वहां से चले गए और अब सब कोई नाजी से घबरा रहे थे कि शायद वह भी क्या करे? एटॉमिक बम बनाए और उसका यूज करे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब क्या हुआ? यहां पर उनके एक कलीग ने, आइंस्टाइन के एक कलीग ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करें? एक लेटर लिखें। किसको लेटर लिखा जाए? तो आइंस्टाइन ने लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और यह लेटर 2 अगस्त 1939 को लिखा गया, जिसमें उन्होंने उनको वार्न किया कि एक इस तरह का बम जो जर्मनी ने अभी डिस्कवर किया है, अगर उसको पोर्ट पर एक्सप्लोड किया जाए तो वो क्या करेगा? पूरे के पूरे पोर्ट को तो तबाह करेगा ही, साथ में उसके अगल बगल की जो टेरिटरी हैं, उसके आसपास की जो टेरिटरी हैं, जगह है, उसको भी वह क्या करेगा? नाश कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और उनका जो लेटर था उसका कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव अमेरिकन प्रेसिडेंट पर नहीं पड़ा और अमेरिकन चुपचाप, मीन्स एक सेक्रेट प्रोजेक्ट, एक छुपाकर एक प्रोजेक्ट, वह खुद भी एटॉमिक बम को डिस्कवर कर रहे थे। और इसको इन्होंने क्या किया? जापान की 2 सिटी, जो आपने सुना भी होगा विश्व युद्ध के टाइम में, वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1945 को, अगस्त 1945 को जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर इस एटॉमिक बम को गिराया गया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. Public missive का अर्थ क्या होता है? Letter, especially long and official. यह जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, इस बड़े पैमाने का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पर, यह आइंस्टीन को अंदर से हिला दिया था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? यूनाइटेड नेशन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का एक प्रपोजल दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और जिस तरह से रूजवेल्ट को इन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक उसी तरह इस चिट्ठी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। और अगले 10 सालों तक के लिए आइंस्टीन क्या हुए? पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. और उन्होंने आर्म्स, जो हथियार जो बिल्डअप बनाए जा रहे थे, डेवलप किए जा रहे थे, उसकी पॉपुलैरिटी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और कैंपेन किस चीज़ का हो रहा था? कर रहे थे पीस और डेमोक्रेसी का, शांति का और लोकतांत्रिक तरीका का। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. विजनरी का अर्थ क्या होता है? ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर को देख सकता हो अच्छे तरीके से, एक सही तरीका, एक सही एजम्पशन करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विजनरी कहते हैं।
और आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में जब वो 76 ईयर्स के थे तब इनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद से ही वह सेलिब्रेट किस रूप में किए जा रहे हैं, एक विजनरी पर्सन के रूप में जो कि फ्यूचर को देख सकते थे और साथ के साथ एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में, दुनिया का ऐसा सिटीजन जो कि एक साइंटिफिक जीनियस था। ओके, and this one is whole about your chapter. And if you really like this video, then please like, share, comment and subscribe this channel. Thanks a lot.